Hello everyone, welcome to JV's IAS. I am Sakshi and in this session we are going to discuss and we are going to continue in fact our series for the Hindu daily MCQs. यहाँ पर हम The Hindu आपके जो newspapers हैं including several other resources, other sources, other newspaper websites, everything सबसे हम जो है न्यूज लेते हैं और आपके पास लाते हैं MCQs जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने UPSC एग्जाम्स में. ठीक है, तो हम इस सेशन में जानेंगे सारे MCQs और सॉल्व करेंगे. स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू कैन ज्वाइन द JV's प्रीमियम कोर्सेज. आप JV's के प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप UPSC CSE 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो आई हाईली रिकमेंड यू शुड ज्वाइन द इंटीग्रेटेड GS कोर्सेज स्पेशली डिजाइंड फॉर द कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग इन द 2021. You can also join the JV's individual courses, module courses, and these courses are individual for the Indian polity, social issues, current affairs, and all these subjects. You can join the courses individually, or else if you want to join for the mains, we have the JV's mains program. JV's mentorship program is also there, and you can join the Super 50 program if you have 2 years, right? So these are the premium courses. You can join, enroll right away. Download this app. You can access all the courses there along with the daily current affairs updates. All the articles, quizzes, everything is there in the app. So go and download this app. And if you want any other information, you can always contact on this number. So चलिए start करते हैं. Let's start discussing the question. First question है about the clinical trials. So the clinical trials in India, they are governed by 1. The Drug and Cosmetic Act 1940, the Medical Council Act of India 1956, the Central Council of Indian Medicine Act 1970. So इसका जवाब होगा all these three. ठीक है, all these three clinical trials जो होते हैं ना हमारे देश में, they are governed by all of these three act. So जैसे कि बताया, the Drugs and Cosmetic Act 1940, Medical Council Act in India 1956 and 1970 की कौन सी वाली एक्ट? The Central Council for Indian Medicine Act. तो अब हम जान लेते हैं न्यूज में क्या है. So the 3 COVID-19 vaccine developers, they are seeking the emergency use approval in India and ये सारे जो है ये आर्टिकल में था कि उनको इमरजेंसी यूज अप्रूवल चाहिए इंडिया में एंड दे आर सीकिंग व्हाट ऑल इज द न्यूज. सो जो ये 3 वैक्सीन डेवलपर्स हैं इन्होंने नई दे हैव मेड एप्लीकेशंस टू इंडियाज ड्रग रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. इधर पे उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दे दी है कि उनको इमरजेंसी फॉर द इमरजेंसी यूज अप्रूवल फॉर द कैंडिडेट्स फॉर द COVID-19 वैक्सीन ट्रायल इनके लिए. तो ये जो था अब तक किसी भी डेवलपर ने none of the developer had yet generated the data about the effectiveness of their vaccines from the phase 3 trials. बट अभी भी इनका जो कहना है, इनका मानना है कि इनको अप्रूवल चाहिए फॉर द यूजर्स ऑफ द ट्रायल्स, राइट. एंड अब आगे चल के हम देख लेते हैं फटाफट हु ऑल आर दीज 3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोविशील्ड. ठीक है, सो ये जो है पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उनकी है and it is it sought approval for its version of the vaccine developed by the Oxford University and AstraZeneca. And अगर बात की जाए कोवैक्सीन, भारत बायोटेक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इन्होंने डेवलप की है इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी and ICMR पुणे. इन्होंने ऑलरेडी रिसेंटली दे स्टार्टेड द फेज 3 trials and the third one is BNT16-2B2. ये जो है US pharmaceutical major Pfizer, इसने जो है कैरी किया था, उसने अब तक इट हैजंट कैरिड आउट द क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया में. उसने अब तक जो है क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं किए. इट इज डेवलप्ड इन द कोलैबोरेशन विद द BioNTech but has still sought an approval to use it here and based on the results of the trials conducted in the US. Now these are the 3 vaccine candidates ये जो हैं अप्रूवल चाह रहे हैं, इसी की बेसिस पे तो जी जो न्यूज थी. अगले सवाल पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPs. सो इस पे सवाल है, दिस वाज साइंड इन 2001. The convention aims to eliminate or restrict the production and use of persistent organic pollutants, POPs. It is legally binding and requires that
effectiveness of the measures adopted by convention is evaluated in regular intervals. So इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है. फटाफट पीओपी क्यों न्यूज में है और इसके बीच में क्या चल रहा है वो सब जान लेते हैं. पहले हम जानेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपीज के बारे में. 2001 में साइन किया गया था, इफेक्टिव हुआ था 2004 तक, एंड आफ्टर द 90 days rectification and at least 50 signatory states से उसमें aim है to eliminate or restrict the production on use of persistent organic pollutants. POPs का जो है यूज और उसके जो प्रोडक्शन है उसको क्या करना, एलिमिनेट करना या रिस्ट्रिक्ट करना इनका एम है. लीगली बाइंडिंग भी है. ओके, सो दिस इज ऑल देयर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोर. इसमें जो है देयर वर 12 इनिशियल POPs, ठीक है, पहले, और वो जो थे उनको रिकॉग्नाइज किया था एज कॉजिंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन एंड इकोसिस्टम. These particular POPs, they were causing particular effects, साइड इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन एंड इकोसिस्टम. तो उनको 3 कैटेगरीज में रखा था, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पेस्टिसाइड्स में, इंडस्ट्रियल केमिकल्स में और बाय प्रोडक्ट्स में. सो रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया था, इनफैक्ट रेक्टिफाई किया था 7 of these more chemicals which are listed in this Stockholm Convention on POPs. ठीक है, अब हम न्यूज पे आते हैं. सो अभी आपने देखा होगा इलूरू आंध्र प्रदेश में देयर वाज अ मिस्ट्री डिसीज, है ना, जहां पे 450 पेशेंट्स जो थे उनको ये जो है माना गया था दैट दे आर फेसिंग दिस मिस्ट्री डिसीज. इसके बारे में बहुत सारे टेंटेटिव रीजंस बताए जा रहे हैं एंड द मोस्ट पॉसिबल रीजन इज सेड टू बी द ऑर्गेनोक्लोरीन्स, OCs. ये बोला जा रहा है दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस, एंड इनफैक्ट जिन 450 में से देयर वाज 1 डेथ एज वेल. सो जो OCs होते हैं इन मिड 1970s बेसिकली दे रिजल्टेड इन द वाइड स्प्रेड रिप्रोडक्टिव फेलियर्स अमंग द बर्ड्स. उनमें जो है यहाँ पे इफेक्ट देखा गया था इंडिया में. मिड 1970s की बात है और अभी जो है मोस्ट पॉसिबल रीजन बताया जा रहा है इस मिस्ट्री डिसीज के बारे में भी. अबाउट ऑर्गेनोक्लोरीन्स, इसके बारे में जान लेते हैं. सो दे आर वाइडली यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स की तरह इनको मोस्टली यूज किया जाता है. दे आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ chlorinated compounds that belong to the class of persistent organic pollutants. POP के क्लास में आते हैं with high persistence in the environment. So जो OCs होते हैं insecticides, they are earlier used to control the, उनको पहले क्या मलेरिया और टाइफस इन सारी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता था, but later on they were banned in most of the countries. ये होते हैं relatively cheaper. And basically a review statistics has shown that 40% of all the pesticides used belong to this particular class of chemicals. ये सारी चीजें देखने मिली. अब हम जानेंगे what are the adverse effect. पहले हम देखेंगे short term and then long term exposure क्या होता है. Short term exposure में आपको देखने मिलेगा ये सारी चीजें, headache होगा, आपको nausea होगा, vomiting, tremors, confusion, muscle weakness होगी, slurred speech, ये सारी की सारी छोटी छोटी चीजें ये आपको मिलेंगी. These are the short term exposures. लेकिन long term अगर हम बात करें, you might see the liver डैमेज, किडनी डैमेज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज और थायराइड देखने मिल जाएगा, ब्लैडर में डैमेज मिल जाएगा. तो ये सारे जो क्या है, दीज आर द लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इस केमिकल के. ठीक है, एडवर्स इफेक्ट में आप देख सकते हो. एंड ऑल्सो यू कैन सी many such pesticides have been linked to elevated rates of liver and kidney cancers in animals and may cause cancers in humans as well. That is why ये जो है these such chemicals they are banned in the United States. People हम कैसे एक्सपोज हो जाते हैं ये OCs से, कैसे हमें इनका एक्सपोजर मिलता है. पहले तो एक्सीडेंटल इनहेलेशन, यानी कि जहां पे स्प्रे हो रहा है इसका पेस्टिसाइड्स का या फिर जहां पे यूज हो रहा है वहां पे हम एक्सीडेंटली चले जाएं तो हम इससे एक्सपोज हो जाएंगे. एंड सेकेंड वन इज द एक्यूमुलेशन इन द एनवायरमेंट. दिस इज द सेकेंड प्रोसेस. अगर हम देखा जाए केमिकल्स दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एंड इंजेस्टेड थ्रू फिश, या फिर आप देख लो डेयरी प्रोडक्ट से, या फिर दीज अदर फैटी फूड्स, इनके थ्रू भी आ सकते हैं. एंड विच कैन गेट कंटेमिनेटेड एज वेल एंड दे आर परसिस्टेंट ऑल्सो एंड दे मूव डिस्टेंसेस. इसकी वजह से जो है सरफेस पे भी, रन ऑफ पे भी, ग्राउंड वाटर पे भी ये मिल सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू पीपल कैन बी एक्सपोज्ड टू दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ OCs. चलते हैं अगले सवाल पे. अगला सवाल इट इज अबाउट द NRF. सो NRF के बारे में क्वेश्चन है, द नेशनल रिसर्च
Foundation, very recent, you can say infrastructure. It is an autonomous body envisaged under the Science, Technology and Innovation Policy 2020. ये इसके अंदर आता है क्या? Second one, NRF will fund research projects across 5 major disciplines. So see, none of the statement is correct because ये तो बहुत ही recent हमारी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसका डेवलपमेंट है, ठीक है, इसका तो नहीं है. 5 प्रोजेक्ट्स में ये 5 डिसिप्लिन्स में ये नहीं करता है. फंड दिस फंड फॉर लाइक 4 प्रोजेक्ट्स जो कि अब हम आगे डिस्कस करेंगे. आंसर विल बी नन ऑफ द अबव. नाउ NRF which is soon to be set up. It is an autonomous body which comes under the new education policy 2020. अभी बहुत ही recent development है हमारे इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, उसी का ये जो है पार्ट है, उसके अंदर ही जो है ये बॉडी को डेवलप किया जाएगा. ये क्या करेगा? इट विल फंड एंड मॉनिटर एंड बिल्ड द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन इंडिया. इंडिया में रिसर्च का जो ध्यान बेसिकली रखेगी ये पर्टिकुलर अथॉरिटी रखेगी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. फीचर्स क्या है? ऑफ कोर्स फंड करेगी रिसर्चर्स को जो कि काम कर रहे हैं बहुत सारी फील्ड्स में इंडिया में. एंड इंडिया इन्वेस्ट लेस देन 1% ऑफ, अगर हम देखा जाए इंडिया इन्वेस्ट लेस देन 1% ऑफ इस जीडीपी इन द रिसर्च एंड इनोवेशन. इस चीज को जो है ठीक करने के लिए NRF का जो है क्रिएशन किया जा रहा है. अदर रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी फंड करेगी, लेकिन 4 मेजर डिसिप्लिन में, 5 में नहीं, 4 डिसिप्लिन क्या है? बेसिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस में एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में. इन सब में जो है ये क्या करेगी? फंड करेगी. नाउ फीचर्स देख लेते हैं. सो द मेन फीचर इज टू इंश्योर द इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन इन रिसर्च. रिसर्च में पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना. एंड ये क्या करेगा? इट इज गोइंग टू सजेस्ट द करियर काउंसलिंग इन स्कूल to identify the students who are interested and talented and promote the research university, inclusion of research, internships in the undergraduate curriculums, faculty career management systems that is due weightage in the research. ठीक है, ये सारी चीजें, these are the features, these are the aim. It is going to provide a reliable base of merit based but equitable पीयर रिव्यूड रिसर्च फंडिंग. रिसर्च के बेसिस पे जो है रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, उसको जो क्या अच्छे से बढ़ावा देना चाह रहे हैं. ठीक है, ये सारे हैं इसके फीचर्स. इसमें बहुत सारे जो इनिशिएटिव हैं उनको भी लेगा रिसर्च को ग्रो करने के लिए, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, या फिर जो भी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन हो, उनकी रिसर्च कैपेबिलिटी को क्या है? बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी उनकी रिसर्च कैपेबिलिटी है दैट इज वेरी लिमिटेड. तो उनके लिए इनिशिएटिव्स वगैरह लेना, ये सारा काम है NRF का. क्यों न्यूज में है? सो इन स्टैंड फॉर रैंकिंग होप फॉर इंडियन साइंस. तो क्या है इसमें, इस रैंकिंग में फ्रॉम इंडिया 1594 इंडियंस हैव मेड इट टू द लिस्ट एंड टू द टॉप 2 साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, इसमें जो है हमारी इस तरह की रैंकिंग है. अब ये क्या करते हैं? साइंटिस्ट एट दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी हैव क्रिएटेड अ डेटाबेस ऑफ दिस मच ऑफ टॉप 2 साइंटिस्ट, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड. एंड ये किस पे बेस्ड होते हैं? दीज आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑन साइटेशन, H इंडेक्स, को ऑथरशिप एंड कंपोजिट इंडिकेटर्स. ये सारे बेसिस पे जो है उनको रैंकिंग देते हैं. एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स ऑल्सो जो कि पब्लिश किए जाए, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ऑथर हैज बीन साइटेड एंड इन H इंडेक्स. एंड ये सारी चीजों के बेसिस पे क्या है उनको जज करते हैं, जिससे विच इज अ मेजर टू इम्पैक्ट ऑफ एन ऑथर्स वर्क एंड अदर्स पीपल रिसर्च. ये सारे जो है दिस इज हाउ ऑथर्स या फिर रिसर्च जो कर रहा होता है इंसान उसको मेजर किया जाता है. इन सारे बेसिस पे दे गिव द रैंकिंग और इंडिया की पोजीशन है. ठीक है, और दिस आर्टिकल बेसिकली सेज दैट देयर इज अ होप फॉर इंडिया. एंड हाउ देयर इज होप फॉर इंडिया? क्योंकि हमारे पास आई है 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने बात की है नेशनल रिसर्च इसके बारे में, ठीक है, जो कि NRF के बारे में बात की है. NRF से क्या होगा? रिसर्च जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का उसको बढ़ावा मिलेगा. तो देयर इज मोर होप फॉर इंडियन साइंस. ठीक है,
नाउ की टेकअवेज वी कैन से साइंटिस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, सी क्या है इस बेसिस में इसमें देखने मिला कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साइंटिस्ट थे, दे हैव शोन द सुप्रीमेसी इन द डिसिप्लिन ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये 4/5 ऑफ द साइंटिस्ट आपको कहां से देखने मिले? स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट फंडेड या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो कि स्टेट फंडेड हो। ये सारे जो लोग, ये सारे जो थे स्टेट लाइक गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इनमें आपको ये सारे के सारे साइंटिस्ट देखने मिले। Scientists from the private institutions, they are much active in the disciplines of medicine and allied areas। आपको ये यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट सपोर्टेड लोग ज्यादा है, ये बोला जा रहा है, और जो अलाइड एरियाज हैं उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दे हैव द मोर यू कैन से सो देयर इज एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट वर्किंग इन द इंस्टीट्यूशन इन द urban and rural areas। ये सारे जो हैं these are the key takeaways। So conclusion is that the listing point to the outcome of freedom, flexibility and facilitation to the faculty in these institutions to carry out research on any relevant topic। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज अबाउट द 5G टेक्नोलॉजी। सो क्वेश्चन है which of the following are the benefits of the 5G टेक्नोलॉजी? इनमें से क्या 5G टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स हैं? 1. हायर मल्टी GBps पीक डेटा स्पीड। Second, ultra high latency. Third, more uniform user experience to more users and new industries। See, this ultra high latency यानी कि जो सर्विस है वो लेट होगा, तो ये तो obviously incorrect हो जाएगा। There is low, very low latency time। तो 5G में okay, 1, 3 and 4 they are correct। टेक्नोलॉजी सी 5G जो कि 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क को बोला जाता है। दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड आफ्टर 1G, 2G, 3G एंड 4G। इनके बाद आया 5G। सो ये क्या करता है? इट इनेबल्स new kind of network that is designed to connect virtually anyone, everything together, including the machines, objects and devices। इन सबको एक साथ जो है कनेक्ट कर सकता है। 5G जो है OFDM इस पे बेस्ड होता है, इस मेथड पे बेस्ड होता है, मेथड ऑफ मॉड्यूलेटिंग अ डिजिटल सिग्नल अक्रॉस सेवरल डिफरेंट चैनल्स टू रिड्यूस द इंटरफेरेंस। अगर ये होगा तो जो है लेट, जो अभी हमने बोला, दैट विल बी वेरी लो। 5G uses and 5G NR air interface along wide OFDM principles। ये जो है it also uses the wider bandwidth technology such as the sub-6 GHz and MM wave। बेनिफिट्स देख लेते हैं फटाफट। हायर मल्टी GBps पीक डेटा स्पीड, ऑफ कोर्स। अल्ट्रा लो लेटेंसी, तो जो वहां पे दिया था अल्ट्रा हाई वो गलत हो जाएगा। मोर रिलायबिलिटी, massive network capacity, increased availability and a more uniform user experience to more users, high performance and improved efficiency, empower new user experiences and connect new industries। ये सारे जो हो जाएंगे benefits, very easy and very you can say easily आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब ये न्यूज में क्यों है, ओके ये पढ़ लेते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर टोल्ड द टेलीकॉम सेक्टर leaders that all stakeholders needs to work together to ensure the timely rollout of the 5G technology as well as make India as a global hub for the telecom equipment design, development and manufacturing। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की एक स्पीच थी, जो भी था, उन्होंने कहा कि हमें जल्दी से जल्दी 5G टेक्नोलॉजी पे जो है काम करना स्टार्ट करना है। अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द की टेकअवेज फ्रॉम द पीएम्स मैसेज। ई-वेस्ट हैंडलिंग्स, सी जो भी हम देखते हैं ना, व्हाट इज ई-वेस्ट हैंडलिंग्स? सो बेसिकली विद द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन देयर इज अ कल्चर ऑफ रिप्लेसिंग हैंडसेट्स एंड गैजेट। अब हमारे पास कोई भी नया टेक्नोलॉजी, नया वर्जन का फोन अगर जो है लॉन्च होता है, तो हम क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं, जल्दी रिप्लेस करते हैं हैंडसेट को या फिर कोई भी गैजेट को। सो उससे क्या होता है? ई वेस्ट जो है वो बढ़ता है। नाउ इंडस्ट्री, इसमें मैसेज में बोला द इंडस्ट्री शुड लुक एट द फॉर्मिंग अ टास्क फोर्स टू थिंक ऑफ बेटर वेज ऑफ हैंडलिंग द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। यानी कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे जो है उस पे काम करना है, पहली बात। दूसरी बात FDI, while the foreign capitals and the innovations were welcome, safety and security of the nation was also important। Communication and IT sectors have witnessed a 7% growth in FDI even amidst the pandemic।
ये सारी बातें ये जो है प्राइम मिनिस्टर ने कही. यू कैन रीइटरेट अपने मेंस के आंसर्स में, आप यू कैन हाईलाइट दीज पॉइंट्स. डिजिटल टेक्नोलॉजी, सी डिजिटल टेक्नोलॉजी हैड टू बी सिक्योर सो दैट जो इंटरेस्ट है और जो भी एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो उसको मिसयूज ना कर पाए. तो इसको पहले हमें क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए. सेंटर फॉर AI, artificial intelligence. So India should become a big center for the artificial intelligence, but new technology should lead to the empowerment of the common people ultimately. इनको benefit मिलना चाहिए. यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होना चाहिए टेक्नोलॉजी की जो लोग हैं, कुछ ही लोग हैं, few people can access that. No, it should not become an instrument of weaponization. Okay, it should be accessible for everyone and accessible for all. ये सारी बातें प्राइम मिनिस्टर ने कही. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, IRNSS पे. सो which of the following statement is correct about the Indian Regional Navigation Satellite System? इनमें से क्या Indian Regional Navigation Satellite System के बारे में सही है? It is an independent regional navigation satellite system designed to provide accurate position information service to users in India, an area extending up to 1500 kilometers from its boundary and which is its primary service area. The IRNSS system is expected to provide a position accuracy of better than 5 m in the primary service area. And the third one is that recently India had become the second nation, जिसमें बोला जा रहा है India recently has become the second nation in the world to have its IRNSS recognized by the IMO, International Maritime Organization, as a part of the Worldwide Radio Navigation System. So इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? जहां पे मैंने मार्क किया वो गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. जहां जहां मार्क किया वही वही गलत है. अब देख लेते हैं डिटेल में. IRNSS, it is an independent regional investigation satellite system जो कि इंडिया में डेवलप हो रहा है. It is being designed to provide accurate position information service. Accurate position information देगा users की, as well as regional extending up to the 1500. First statement सही हो जाएगा. Second statement जो बात की गई थी, C. It is going to provide two types of services. एक तो standard positioning services SPS देगा और एक RS देगा, and that will be encrypted and provided to the authorized users. और वहां पे जो 5 मीटर की बात थी, that will be 20 मीटर. तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया. एंड रिसेंटली इंडिया बिकेम द फोर्थ नेशन, नॉट द सेकेंड नेशन ऑफ द IMO. यही जो थी वो न्यूज थी. ठीक है, सो द न्यूज इज द इंडिया बिकेम द फोर्थ नेशन इन द वर्ल्ड टू हैव इट्स IRNSS recognized by International Maritime Organization as a part of the Worldwide Radio Navigation System. ठीक है, और इसके बाद बाकी 4 कौन कौन है वो भी जान लीजिए. बाकी सारी 3 कंट्रीज, फोर्थ इंडिया, US, रशिया एंड चाइना. This was the news. India became the 4th nation to get the IMO nod for investigation satellite system. Okay, so this was the news. ये जो कि हमने पढ़ा, India has become the 4th country and other country थी US, Russia and China. Let's talk about IRNSS. ठीक है, IRNSS के बारे में बात कर देते हैं. तो अभी हमने जैसे बताया ना, it is basically designed to provide accurate position information system and basically to assist the navigation ships in Indian Ocean water. ये जो है इसका मेन एम है. जिसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ शिपिंग, they had approached for the IMO for granting recognition for this IRNSS. इन्होंने अप्रोच किया था IMO को as a component of this radio network. तो फिर उसके बाद जो है हमें पोजीशन मिल गया. बाकी सारी चीजें हम जान चुके हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द उमंग ऐप. उमंग ऐप के बारे में क्वेश्चन है. सो रिसेंटली इंटरनेशनल वर्जन ऑफ दिस उमंग ऐप known as Umang International has launched for the countries of BRICS. So yes, launch तो हुआ है, but BRICS countries के लिए है क्या सिर्फ? And second one, Umang app is a government of India all-in-one single unified mobile app that provides access to high impact services of various organizations of central government. So see, not only central government, state government also. ठीक है, तो neither one nor two. ओके, ठीक है. अब पढ़ते हैं उमंग ऐप के बारे में. क्या है ये ऐप? बेसिकली इट इज अ यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ऑल इन वन यूनिफाइड मोबाइल ऐप दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू हाई इम्पैक्ट सर्विसेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. एम है
बेसिकली फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस इंडिया में देने का, ईज ऑफ लिविंग, ठीक है, ये इनेबल करता है सिटीजन्स के लिए, राइट, एंड ऑल्सो इजी एक्सेस टू प्लेथर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस, एजुकेशन, हाउसिंग, एनर्जी, एनवायरमेंट एक्सेट्रा, एवरीथिंग, इन सबको चीजों को प्रोवाइड करने के लिए रिसेंटली आईटी मिनिस्टर ने लॉन्च किया है उमंग इंटरनेशनल, ठीक है, ये जो है उन्होंने लॉन्च किया रिसेंट में, वेरी वेरी रिसेंटली. सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी like and in coordination with Ministry of External Affairs, of course उमंग इंटरनेशनल है, तो दोनों ने मिलके जो है लॉन्च किया है इंटरनेशनल वर्जन ऑफ उमंग ऐप. ये जो है इसको बोला जाएगा उमंग इंटरनेशनल एंड इट वाज लॉन्च टू मार्क द 3 years ऑफ उमंग ऐप जो कि 2017 में लॉन्च की गई थी. सो द इंटरनेशनल वर्जन इज फॉर द सिलेक्टेड कंट्रीज. जे कंट्रीज आप याद कर लीजिए, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड्स, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. बेनिफिट्स क्या होंगे? इट इज गोइंग टू हेल्प द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो एनआरआई होंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे या फिर इंडियन टूरिस्ट होंगे जो कि अब्रॉड में होंगे, इनको क्या प्रोवाइड करने के लिए? गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल होगी जो कि इंटरनेशनली रह रहे हैं, ठीक है. एंड ऑल्सो इट ऑल्सो गोइंग टू हेल्प इंडिया टेकिंग द वर्ल्ड थ्रू इंडियन कल्चर सर्विसेज अवेलेबल ऑन द उमंग ऐप. और क्या बनाएगा? फॉरेन टूरिस्ट को में इंटरेस्ट जगाएगा टू विजिट इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विद द रेफरेंस टू स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व स्कीम पे क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नंबर 1, the scheme paves the way for using the property as the financial assets by villagers. ये स्कीम क्या करती है? It paves the way for using the property को as a financial asset यूज कर सकते हैं villagers for taking loans and other financial benefits. Second one, it is a central sector scheme launched by Ministry of Panchayati Raj. So both the statements are correct. हम फटाफट जान लेते हैं स्वामित्व स्कीम के बारे में. So basically ये जो स्कीम है इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड जो होते हैं स्टेट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, दे आर द नोडल डिपार्टमेंट्स, सर्वे ऑफ इंडिया that shall work as a technology partner in this for the implementation of स्वामित्व scheme. Scheme paves the way for using the property. इसमें क्या कर सकते हैं villagers? They can use their property as a financial asset for getting the loans and other financial benefits. Other जो financial benefits हैं इनको देने के लिए जो villagers हैं they can use their property as a financial assets. ये क्या करेगा? It will create the record of the लैंड ओनरशिप इन द विलेजेस. विलेजेस में लैंड ओनरशिप के जो है रिकॉर्ड कंडक्ट करवाएगा, उनको लेगा एंड उनको फैसिलिटेट करेगा फॉर व्हाट? फॉर टैक्स कलेक्शन, न्यू बिल्डिंग प्लान्स एंड इशुएंस ऑफ द परमिट्स. इसके थ्रू, किस स्कीम के थ्रू? स्वामित्व स्कीम के थ्रू. ओके, सो both the statements are correct. Now अब ये न्यूज में क्यों था? So जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर द रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने गाइडलाइंस इशू की स्वामित्व स्कीम की, अ न्यू इनिशिएटिव बाय द पंचायती राज. ठीक है, बड़ा ही रिसेंट डेवलपमेंट है. स्कीम क्या करेगा? इट विल स्ट्रीमलाइन द प्लानिंग एंड द रेवेन्यू कलेक्शन इन द रूरल एरियाज. इंश्योर करेगा क्लैरिटी ऑन द प्रॉपर्टी राइट्स, है ना, प्रॉपर्टी राइट्स पे क्लैरिटी क्लियर करेगा. एंड द स्कीम विल ऑल्सो बी enable the creation of better quality of ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान एंड ऑल्सो द ड्रोन सर्विंग, लाइक जो ड्रोन सर्विंग टेक्नोलॉजी से उनके जो सेक्टर्स, उनकी प्रॉपर्टीज से क्या करने वाले हैं? टैक्स कलेक्शन करने वाले हैं और बहुत सारी चीजें जैसे कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, बिल्डिंग प्लान, इशुएंस करेंगे परमिट्स को. ये सारी चीजें करने से क्या है? पंचायत में इफेक्टिवनेस आएगी, एफिशिएंसी आएगी, है ना. Also, he released the standard operating procedures regarding the e-gram swaraj and everything जब उन्होंने इसके ये जो है ये स्कीम को लॉन्च किया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. त्रिशंदा कुना समटाइम्स सीन इन न्यूज इज लोकेटेड. कहां पे लोकेटेड है? पैसिफिक ओशन, सदर्न अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी. सो द आंसर इज सदर्न अटलांटिक ओशन. यहां पर होते हैं. अब जान लेते हैं क्या है. सो ये जो थे दे हैव रिसेंटली क्रिएटेड द मैसिव मरीन प्रोटेक्शन जोन. इनको बोला मैसिव, दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड द मैसिव marine protection zone. Basically they are a remote group of volcanic islands, ठीक है, जो कि साउथ अटलांटिक ओशन में जो है प्रेजेंस है. They
mostly they are mostly inhabited archipelago in the world, lying approximately 1500 miles off the coast of the Cape Towns in South Africa. ये जो होते हैं बेसिक इनके फैक्ट्स जान लेते हैं, ठीक है. बेसिकली दे आर होम टू द वर्ल्ड्स मोस्ट रिमोट ह्यूमन सेटलमेंट्स इनको बोला जाता है. दे आर ऑल्सो आइसोलेटेड in the UK overseas territory and it is a remote group of volcanic islands जो कि हमने देखा. इनके पास उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है. and it is the home for the tens of the millions of seabirds and unique land birds. It is also home to the World Heritage Site GOF and बहुत सारे islands जो हैं ये सारे inaccessible islands हैं, उनके लिए भी World Heritage Site यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी. and which is most inhabited by the seabirds island. ठीक है, ये सारी चीजें मिलेगी. कहाँ पे है लोकेशन? जैसे कि हमने देखा साउथ अटलांटिक ओशन में, ठीक है. नाउ अगले सवाल पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. वेरी इजी क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ नेटवर्क ऑफ रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड इट एम्स टू कनेक्ट 4 सिटीज इन द नॉर्थ ईस्ट की 4 सिटीज को कनेक्ट करेगा. गुवाहाटी, शिलोंग, इम्फाल एंड कोहिमा. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, लाइक बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, क्योंकि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वेरी वेरी फेमस रोड नेटवर्क है, ना कि रेलवे नेटवर्क है. और वो जो 4 सिटीज मैं आपको मैप से बताऊंगी, सी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये सारी सिटीज हैं, 4 सिटीज हैं, मेजर मेट्रो सिटीज, इनको कनेक्ट करता है ऐसे. दिस इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. कोलकाता से मुंबई, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हो मुंबई, नीचे साउथ और फिर दिल्ली, ये चेन्नई. ओके, दिस इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. वहां पे नॉर्थ ईस्टर्न वाला कोई सिस्टम नहीं है ना. नेशनल हाईवे का नेटवर्क है. इट कनेक्ट ऑल मेजर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड कल्चरल सेंटर्स इन इंडिया. 4 ये जो है आप देख सकते हो 4 मेट्रो सिटीज जो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में लोकेटेड है, राइट. This is managed by the National Highway Authority, of course, under the Ministry of Road and Transport. अब देख लेते हैं न्यूज क्या है. So PM dedicates to the nation the 6-lane widening project of the Handia Prayagraj Rajathalab Varanasi section of NH-19. तो ये एक 6-lane project जो है प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है and it has been upgraded to the highway बिटवीन द प्रयागराज एंड वाराणसी. बहुत सारे डिवोटीज और टूरिस्ट को जो है ये हेल्प आउट करेगा. लोकेशन एक बार फिर से देख लीजिए, हंदिया, प्रयागराज एंड राजा तालाब, वाराणसी. ओके, सो दिस इज अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड द न्यूज. दिस इज इट, राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following are the functions of the National Commission for Protection of Child Rights? Okay. 1. Look into matters relating to children's in the need of the special care and the protections. 2. Undertake and promotes the research in the field of the child rights. 3. Spread child rights literacy among various sections of the society. And 4. Inspect a juvenile custodian home under the control of the central government where the children are detained for the purpose of reaffirmation. So, see, चारों स्टेटमेंट सही हैं about the National Commission for Protection of the Child Right. क्या करता है, हम जल्दी फटाफट जान लेते हैं इसके फंक्शंस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट टू बी द सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअली एट लाइक, यहाँ पे क्या करता है ये एनुअली गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स सारी सबमिट करता है अबाउट द चाइल्ड राइट्स. ऑल्सो स्टडीज द ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स. जो भी इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स है अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स उनको पढ़ता है, उनको एनालाइज करता है, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को रिव्यू करता है, रिकमेंड करता है फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक है, एंड ऑल्सो अंडरटेक एंड प्रमोट द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ द चाइल्ड राइट. और क्या है, स्प्रेड द चाइल्ड राइट लिटरेसी अमंग्स द वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड प्रमोट्स द अवेयरनेस of the safeguards available for the protection of these rights through publication, media, seminar and other available means. ये सारे means से basically इनको awareness and literacy बढ़ाएगा child rights के लिए. इंस्पेक्ट करता है और cause
to be inspected as a juvenile custodial home or any other place of residence or institution meant for the children under the control of the central government or state government or any other authority, including any institution run by the social organization where the children are detained or lodged for the purpose of the treatment. ये सारी चीजें ये इंस्पेक्ट करेगा, देखेगा कहीं पे चिल्ड्रंस को ऐसी अथॉरिटीज में डिटेन तो नहीं किया जा रहा, उनके साथ अलग मिस ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा, ये सारी चीजें चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली इनका काम है. ओके, सो गाइज दिस इज इट अबाउट दिस सेशन. हमने आज काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किया. आई होप आपको ये सारे सेशंस, सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, और ये सारे क्वेश्चंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. सारे जो रिसेंट न्यूज अपडेट्स हैं उनसे ये क्वेश्चंस हमने लिए हैं. सो यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट. नाउ बिफोर गोइंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आप जेवीज के प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं. वी हैव द सुपर 50 प्रोग्राम फॉर 2 years अगर आप 2 साल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं. अदरवाइज यू कैन ज्वाइन द इंटीग्रेटेड जीएस कोर्सेज फॉर 2021. You can also join the JV's mains program. You can also join the JV's mentorship program. So there are so many premium courses. Otherwise, if you want to prepare for any individual courses, you can join individual courses as well. By what? By how you will download the JV's app, get the access of all these courses, enroll in the courses wherever in whatever you are interested in. Okay, so go and download the app. Along with these courses, you will get so many things, quizzes, daily current affairs updates. Everything will be, various articles will be updated there. So log on to the app right away. For more information, contact on this number. अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, so सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा and bell icon जरूर दबाइएगा. By this you will get the instant notification of all the updates in this channel. ठीक है, so that you will not miss anything. And you can also contact us on the social media websites, Facebook, Twitter, Instagram and Telegram. So I'll see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.